Consistency, we are again focusing on the same chapter, your organic chemistry, and in this we'll discuss about the third point which we were working on, the unique nature of carbon, that was isomerism. And isomerism is been there in the detailed form in your course. So please, first of all, you have to understand what is a isomerism. I'm not going towards definition just now. I just want to give you an example, then we'll discuss the definition and all that. Suppose I give you a compound and its molecular formula is been given to you. Now first of all, you have to understand what is these things, I want to say molecular formula, because you are still confused what is the molecular formula and what is the structural formula. Okay, so let's first of all clear up with this concept of molecular formula and the structural formula. Suppose I give you molecular formula, na, actually exact number of each kind of atoms is in there in the molecule. So suppose I have given you this way. Suppose C2H6 I am giving you. This is ethane. Just now you don't know, but I am just telling you. But I think CH4, methane you know. Okay, this thing you have done in your chemical bonding. So methane formula you know, CH4. So what I am saying, it's a molecular formula. Molecular formula is actual number of each kind of atoms in a molecule of the organic compound. So this is the actual number of each kind of atoms in a molecule of the organic compound. Now what does it means? Now I have given you CH4, ठीक है, मीथेन दिया रखा है. Now you can easily tell me कि मैम इसमें 1 कार्बन एटम है and we have 4 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अब ऐसी इथेन हमने दिया है C2H6, तो यू कैन ईजिली टेल मैम एग्जैक्ट नंबर है, 2 कार्बन एटम्स हैं एंड 6 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो दिस वे. ना स्ट्रक्चरल इज, अब इसी चीज़ को तुमने अरेंज कर दिया. अब स्ट्रक्चरल का जो पॉइंट होता है, अब तुमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, तुमने किसी में भी अरेंज कर लिया इसको, चाहे ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया या इसको तुमने कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, तो उस चीज़ को तुम स्ट्रक्चर फॉर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला में भी 2 चीज़ें आती हैं. बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एक होता है कंडेंस्ड और दूसरा होता है आपका ब्रांच्ड. नाउ व्हाट आर दे? सपोज़ हम कंडेंस की बात करते हैं. ठीक है, मैंने आपको, क्योंकि मीथेन में तो देखो कंडेंस का कुछ सीन नहीं रहेगा, लेकिन अब ईथेन जो हमारा एग्जाम्पल था C2H6, इसमें कंडेंस रहेगा. अब ये जो हमने इसको इस तरह से लिख दिया CH3-CH3, ठीक है, या ऐसे लिख दिया CC की बॉन्डिंग जोड़ लें क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इन्हीं के बीच में है कार्बन कार्बन केस में. तो ये बेसिकली ये जो है ये बेसिकली क्या हुआ, कंडेंस हो गया. अब इसी का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है C2H6 का, तो आपने इसके इस तरह से, मैंने बताया था ना, आपने स्ट्रक्चर बनाया और सबको हाइड्रोजन से कर दिए. अभी आप ये नहीं बना पाओगे, लेकिन व्हेन यू लर्न द इंटायर थिंग देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. तो ये समझ में आया, ये कंडीशन क्या हुई, ये आपका कंडेंस्ड है, कंडेंस फॉर्मूला आया, और ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. बोर्ड में दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये वाला पूछा जाएगा बनाने के लिए. तो इट्स क्लियर टू यू. नाउ वी कैन वर्क ऑन इट. नाउ व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म is basically a phenomena in which the compounds are, or the organic compounds have the same molecular formula but differ in the molecular arrangement या structural arrangement, और in the कुछ भी कह सकते हो, molecular arrangement या structural arrangement, कुछ भी. तो that is, this phenomena is known as your isomerism, and the compounds that shows this type of phenomena of isomerisms are known as isomers. यानी जैसे हमारा definition क्या हुई, the organic compounds having same molecular formula. अब तो क्लियर हो गया ना molecular formula क्या होता है. molecular formula but differing in molecular formula, या तो molecular formula उनका फ़र्क हो या फिर इनका, या molecular formula, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो molecular arrangement और इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. आपको ये तो वर्ड्स क्लियर हो गए कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हुआ. मॉलिकुलर फॉर्मूले के बदले यहाँ लिखो मॉलिकुलर अरेंजमेंट ही सही है. ठीक है, मॉलिकुलर अरेंजमेंट और आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. क्लियर? अब यू नो इट व्हाट इज़ द, अब जैसे इसी का केस है C2H6 क्या था आपका,
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था आपका, ये क्या है आपका कंडेंस फॉर्मूला है, ये आपका क्या है स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को आप क्लियर, अब सपोज करो टीचर ने आपको कोई एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल C2H6O, इसको देख के आप नहीं बता सकते हो क्या है ये। बेसिकली क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कि भाई इसको देख के तुमने एग्जैक्ट बता दिया कि हाँ मैम 2 कार्बन आइटम्स आर देयर, 6 हाइड्रोजन आइटम देयर, 1 ऑक्सीजन, बट दिस विल शो यू 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हमें पता है, हम तुम्हें बाद में सिखाएंगे कैसे, बट दिस थिंग इज C2H5OH और ये है CH3OCH3। ठीक है, तो ये इनके जो आपके फॉर्मूलेज हैं वो फ़र्क हो गए हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है और एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इनका अलग है, स्ट्रक्चर भी इनका अलग बनेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी आप नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आप समझिए सिर्फ। ठीक है, बट व्हेन यू लर्न दिस चैप्टर, व्हेन यू कंप्लीट दिस इंटायर चैप्टर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव मेड द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, है ना बेटा। तो आप ये देखो, इनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फ़र्क है, इसका स्ट्रक्चर फ़र्क है। तो आपने क्या करा, इनके स्ट्रक्चर फ़र्क बना लिए। तो ये इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या कह रही थी, वो आपके आइसोमेरिज्म वो प्रोसेस होती है जिसमें आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, पर ये दोनों जो हैं इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला फ़र्क है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज़ डिफरेंट। ठीक है, सो द फिनोमिना इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे लिख सकते हैं द फिनोमिना is isomerism and the compound, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या हो गया आपके, अभी हम बताएंगे, आइसोमर्स। ठीक है, अब समझ में आया, ये जो प्रोसेस जो तुमने पूरी करी वो क्या हो गई, आइसोमेरिज्म। ये जो 2 कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड बना, ये दोनों कंपाउंड, इन दोनों को, वैसे तो इनके नाम फ़र्क है, विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन इनिशियली ये क्या चीज़ें, ये दोनों आइसोमर हैं, ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कंपाउंड आपके बने हैं वो क्या हो गए आपके आइसोमर, और ये प्रोसेस क्या हो गई है आपकी आइसोमेरिज्म। कैसे तुमने जज करा आइसोमेरिज्म, बिकॉज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे वर हैविंग डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सो दिस वाज योर आइसोमेरिज्म। नाउ basically we have to see the characteristics also of it. Now children, these isomers have different properties. ठीक है, अब जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ देखो, तो इनकी जो isomers, अगर एक से chemical properties is if you see the physical properties are different and this thing number of isomerisms is also changing. We have this thing, but एक चीज़ इसमें जो सबसे important जो मुझे लगता है वो होता है number of isomers। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अगर हमें तुम्हें दे दिया तो तुम कैसे जज करोगे कि इसमें कितने पॉसिबिलिटी आइसोमर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था C2H6O, इसमें तुम्हारे पास 2 आइसोमर्स बने। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, कैसे नंबर ऑफ़ आइसोमर्स इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ आइसोमर्स इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन से। यहाँ पे हमारे पास 2 ही कार्बन आइटम थे, 2 आइसोमर्स बने। ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। जैसे अगर मैंने तुम्हें C4H10 दिया तो इसकी भी क्या होते हैं, लगभग 2 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने C5H12 तुमको दिया तो इसमें पॉसिबिलिटी है 3 आइसोमर्स बनने की। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि एज यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स, द नंबर ऑफ आइसोमर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इससे यही इंडिकेट हुआ ना कि भैया एज नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग द आइसोमर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, ये याद रखना है हमको। जो हमारे कोर्स में है, देखो आइसोमर्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो है हम उसी को पढ़ेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स हमारे कोर्स में है, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। देयर आर मैनी, आई एम अगेन टेलिंग, व्हेन यू रीच टू क्लास 11 देन यू स्टडी इन द डिटेल फॉर्म। बट हम लोग अपने जो इस समय जो क्लास 10th में है वो है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, और सेकेंड होता है हमारे पास पोजिशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारे पास, ये 2 ही हैं। अब चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है,
चेन आइसोमेरिज्म जो अराइज होता है भाई, अभी बने कैसे, भाई तुमने देखा ये दो कंपाउंड्स, जैसे हम चलो पीछे चलते हैं, ये दो कंपाउंड्स थे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से फ़र्क हैं, तो इसका स्ट्रक्चर फ़र्क बना। क्यों स्ट्रक्चर बना? देखो इनमें ये चीज़ें, यहाँ देखो, यहाँ O दिख रहा है, यहाँ OH दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप का केस है, अभी तुमने पढ़ा नहीं है, आई विल टीच यू। तो ये डिफरेंट है, इसकी वजह से इन दोनों के स्ट्रक्चर फ़र्क हुए। भाई कार्बन की नंबरिंग दोनों में सेम है, हाइड्रोजन की नंबरिंग सेम है, ऑक्सीजन की नंबरिंग भी सेम है, उधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 6 हाइड्रोजन है, ओवर हियर ऑल्सो यू आर हैविंग 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट बिकॉज देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बदल गया है यहाँ पे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल गए। बट वी आर नॉट फोकसिंग जस्ट नाउ ऑन इट, वी आर फोकसिंग ऑन द चेन आइसोमेरिज्म, लेट्स फोकस ऑन इट नाउ। व्हेन वी टॉक अबाउट चेन आइसोमेर अराइज होता है डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, ठीक है। अब डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम इन अ चेन, अब इसको हम देख के चलते हैं, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं जो हम लोग देखते हैं। सपोज़ करो हमने तुम्हें दिया C4H10, हम एक लेके चलेंगे। इसमें आपके पास, आपने भी देखा है कि देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आइसोमर, दो आइसोमर्स बनाता है ये। अब क्योंकि ये चेन आइसोमेरिज्म यानी चेन अलग बनाएंगे, हो सकता है एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना ले, एक ब्रांच बना ले, यही पॉसिबिलिटी है। जो 2 आइसोमर बनते हैं, एक स्ट्रेट चेन बनता है, एक स्ट्रेट चेन, और एक आपका ब्रांच चेन, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है। जो स्ट्रेट है, देखो स्ट्रेट क्या है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ पे आप कोवेलेंट बॉन्डिंग्स बनाइए और सब पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, H लगा दीजिए। देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन की काउंटिंग जो है वो 10 होनी चाहिए। भाई 4 लगे हुए हैं ऊपर, और इधर साइड पे 2 हैं, तो 10 है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अगर इसका नाम अभी तुम्हें नाम नहीं मालूम है तो तुम सिर्फ ऐसे ही लिख लो, इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है। और इसके आगे N लगा लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन होता है, N ब्यूटेन हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब ब्रांच्ड अगर हो जाती है, ठीक है, इफ़ यू कॉल इट एज ब्रांच, तो ये भी मैंने तुमको बेटा डायग्राम बनाया था जब हम ब्रांचिंग में पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे आपने, ये मैंने सिखाया था पीछे फर्स्ट वीडियो में, ठीक। अब इसमें क्या है भाई, हाइड्रोजन लगा लो, क्योंकि हाइड्रोजन से ही इसकी बैलेंसिंग आपको सेटिस्फाइड करनी है, और काउंट कर लेना हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब एक तरफ ब्रांचिंग याद आ रहा है, इधर से हमारी एक तरफ नीचे वाली ब्रांचिंग थी, तो एक तरफ ब्रांचिंग है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ब्रांच्ड चेन आइसोमर, और जो पीछे वाला क्या था हमारा, स्ट्रेट चेन आइसोमर। तो जब एक तरफ की ब्रांचिंग होती है उसको हम कहते हैं आइसो वर्ड लगा देते हैं। अब देखो है तो 4 ही कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए हमने इसको आइसोब्यूटेन लिख दिया। IUPAC में मैंने नाम लिख रही हूँ, IUPAC इसका फ़र्क नेम होता है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और एक इसकी नेमिंग होती है IUPAC नेम, ये भी हम जब पढ़ाएंगे तब। अभी आप ऐसे लिखिए 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं कि हाय मैम ने कहाँ से लिख दिया, फ्रॉम वेयर शी हैज़ रिटन, प्लीज़ डोंट गेट पैनिक ऑन इट, जस्ट नाउ यू जस्ट हैव अ लुक कि हम इसको इंट्रोडक्शन फॉर्म में से, वंस यू लर्न द नेमिंग प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देन इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। सो क्लियर टू यू, ये ब्रांच चेन आइसोमर है, तो यहाँ ब्रांचिंग आपकी आ रही है। तो ये हमारे कोर्स में, हमारे में और भी है, हमारे पेंटेन हमारे केस में है। तो पेंटेन का अगर आप लेते हैं, जैसे हमने बताया था ना आपको C5, ये हम लोग ने एग्जाम्पल जो लिया था आपका C5H12 में, यहाँ 3 आइसोमर्स बनाए थे, तो इसमें भी 3 बनते हैं। आपका एक N पेंटेन बनता है, ठीक है, इसमें आइसो पेंटेन बनता है आपका, और लास्ट हमारा होता है जब दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है तो नियो पेंटेन। मैं दिखा देती हूँ, दिस इज़ योर बुक पोर्शन। देखो नॉर्मल पेंटेन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एक तरफ ब्रांचिंग है तो आइसोपेंटेन हो गया है, 2 तरफ ब्रांचिंग है, एक ही कार्बन आइटम में दोनों है तो ये नियो पेंटेन इसका। IUPAC नेम इनके फ़र्क है, ये देखो पहले वाला पेंटेन है, दूसरा वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन है। व्हेन वी विल डिस्कस दिस पोर्शन देन आई विल टीच यू हाउ टू राइट डाउन द IUPAC नेम एंड द कॉमन नेम। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, द चेन आइसोमेरिज्म। Now the next portion is your position isomerism also, that also we will see to it. Now next is position isomerism, जैसा नाम वैसा काम। पोजीशन मतलब किसी की जगह चेंज कर दी जाए, भाई एक सीट से हटा के आपको दूसरी सीट पे बैठा दिया जाए, तो क्या वो पोजीशन ही जो चेंज करते हैं। जैसे अगर सपोज करो एक बच्चा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, अब बच्चा जो फर्स्ट पोजीशन में, मैंने उसको उठा कहा चलो तुम थर्ड में जाओ, 1 2 3 पोजीशन, वो थर्ड में चला गया, तो ये चेंज ऑफ पोजीशन होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में
आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमेरिज्म्स कैसे होते हैं? भाई सिंपल इज़ दैट, इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि या तो आप बॉन्ड्स, जैसे आपके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी पोजीशन बदल दीजिए। जैसे एक डबल बॉन्ड यहाँ लग रहा है, आपने उठा कहीं और जगह लगा दी। जैसे ये 4 पोजीशन है, 5 आपने 4 पोजीशन लगा दिया, 5 पोजीशन में लगा दिया। या फिर फंक्शनल ग्रुप, जैसे अभी मैंने पीछे तुम्हें दिखाए थे फंक्शनल ग्रुप्स, तो उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो आपका किस में हो जाता है? चेन आइसोमेरिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें एक ईजिएस्ट वे दिखेगा। जैसे आपने कोई ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसमें देखो ज़रूरी नहीं है डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। किसी की भी पोजीशन आपको चेंज कर देनी है, और इसको नॉट कंपलसरी कि यही एग्जांपल्स आए, टीचर आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने तुमको दिया C4H, ठीक है, ये हमने आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया। अब बच्चा इसमें समझे, पहले तो कार्बन बनाएगा। मैं फिर कह रही हूँ अभी आप नहीं बना पाएंगे, डोंट गेट पैनिक कि मैम ऐसे बना रही, हम तो नहीं बना पा रहे हैं। व्हेन यू लर्न इट देन यू विल बी एबल टू मेक। 4 कार्बन आपने एटम लगा दिए, अब इसमें हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा, वो बात की बात है, लेकिन पहले इस केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कहीं पे भी आपने अपना ट्रिपल बॉन्ड बनाया। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ लगा दिया, अब मैं बैलेंसिंग तो कर ही लूँगी, 1 2 3 है या 4, 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपने यहाँ क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। बेटा काउंट कर लेना, हाइड्रोजन 6 होनी चाहिए, 6 से कम नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है। अब ये देखो कौन सी पोजीशन में, 1 2 3 4, तो ये कौन सी पोजीशन है आपकी? 1। फिर मैं कह रही हूँ डोंट गेट पैनिक, यू डोंट नो हाउ टू राइट डाउन, प्लीज़ हम सिर्फ पोजीशन डिस्कस करें। ये ट्रिपल बॉन्ड जो था मैंने इसको पहली पोजीशन में लगा दिया, अब इसी को उठा के मैं दूसरी पोजीशन में लगा दूँ, मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ फर्स्ट पोजीशन में था इसको उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ नहीं बच्चों को शिफ्ट कर दिया था, ऐसे ही इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये यहाँ आ गया। अभी सेकंड पोजीशन में कैसे मैंने चेक करा? 1 2 3 4, तो आई हैव चेंज द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो पोजीशन चेंज होगी, नाम तो वही है ना, ब्यूटाइन है, क्योंकि कुछ और तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन पोजीशन मेरी चेंज होगी। अभी पहली पोजीशन में थी, अब ये कहाँ पे हो गई है? सेकंड पोजीशन में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन में था बच्चा बैठा हुआ, अब सेकंड पोजीशन में। तो ये कंडीशन होती है आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म की। इट्स क्लियर? ऐसे ये डबल ट्रिपल बॉन्ड का था, बच्चा डबल बॉन्ड भी यूज़ कर सकता है, कोई बच्चा आपका क्या कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप्स के भी यूज़ कर सकता है, तो वो आपकी कंडीशन आ जाती है आइसोमेरिज्म्स की, ठीक है। जस्ट सी दिस इज़ देयर इन योर बुक इन विराफ, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। पेज 223 में है पोजीशन, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो चेन और पोजीशन दोनों में भी आते हैं, और यहाँ तक कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आते हैं। अब देखो ये दोनों एक ही एग्जांपल्स है, लेकिन क्या हो रहा है, ये चेन आइसोमेरिज्म में भी आ रहा है एग्जाम्पल ब्यूटीन का, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी आ रहा है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये दो हैं। तो अगर ब्यूटीन अगर टीचर तुम्हें दे देती है तो इसको याद रखना कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो चेन आइसोमेरिज्म में भी आएगा, पोजीशन में भी आएगा। बट आपको क्लियर है ना कि ये चेन क्यों हुआ? देखो यहाँ स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्यों आया? क्योंकि यहाँ देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन फ़र्क है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर है और यहाँ पे क्या है, सेकंड। नंबरिंग तो करनी आती है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफिकेशन देखना है कि ये चेन आइसोमेरिज्म है तो क्यों है, ये ब्रांच आइसोमेरिज्म है तो क्यों है, ये आउट ऑफ कोर्स है, इस पर फोकस मत करना, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू हाउ यू हैव जज द चेन आइसोमेरिज्म एंड द पोजीशन आइसोमेरिज्म. This is the portion of isomerism. Please go through it. This is the entire page which you have to focus from your book, but learn the definitions and everything which we have discussed. So this is clear. Any doubts then you can ask me.